Hi everyone, so welcome to the new video. So we will be discussing the newspaper dated January 6, 2022 from both prelims and mains perspective. Those of you who are by chance new to the channel, please do check the earlier videos which are already uploaded. That is from 1st to 5th of January, and simultaneously we are already doing it for the month of February as well. Apart from that, in case you are again, like as I just said, new to the channel, so please do subscribe to the channel and also like, comment, share, because by this you will be able to help me spread the word about this initiative. More and more people would be informed and they would be able to use the all the notes and the how we are dealing with the prelims and the mains pointers to their advantage in the whole preparation. And your comments are the medium that you are providing me the feedback regarding these sessions, so that it helps me understand that whatever I'm doing, the way that I'm doing, is it helpful to you or not, and what kind of other modifications would you like me to have. You will be getting certain links in the comment section, the pinned message from my side, as well as in the description of the video as well, wherein the one of the link would be of the Telegram channel, जहाँ पर कि कोई भी PDF की ज़रूरत है, if any PDF is needed to be shared, you would be getting that there. Apart from that, any playlist, like I have created the two of the playlist, one for the month of January, another for the month of February, so that you get the access to all the videos in that playlist only regarding these newspapers, so that you don't have to search it anywhere else, and that becomes less chaotic for you. So please do access all of these there. Let's start with the first page. So those of you who have been following the whole January news, you know that we have been doing this particular thing related to the reservation EWS 8 lakh का income cap पे जो बात हो रही है. Already this has been in news and this is going to continue for another few days also. So you just have to keep on adding, because we have already talked about this in detail in the earlier videos. Then this becomes important from your, let's say, environment or geography perspective. They have talked about 10.74 lakh birds flock to the Chilka Lake. Now, where is the lake and what are the characteristic features of the lake? For example, they say that it is the largest brackish water lake and wintering ground of birds in the Indian subcontinent. तो यहाँ से एक तो आपका छोटा छोटा फैक्चुअल ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है दैट दिस इज़ द सबकॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड. दे होस्ट द बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यहाँ पे एक सर्वे की भी बात की गई है, दैट इज़ वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे. कुछ वेटलैंड्स की बात की गई है. नाउ अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज स्टैटिक डिटेल्स, आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही है, नहीं पता है, how can you proceed? Let's say you have this news clip. What are the things that you can get from there? Firstly, they have talked about Chilka Lake, तो you should know the location. ठीक है, एक ये चीज़ जो आप प्रिपेयर करेंगे, that would be the location of the lake. Then second, as I just said, would be about the characteristic features. सीधा सीधा प्रीलिम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं. जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा वेब सर्च करके करोगे तो वहाँ से आपको जो भी पॉइंटर्स मिलेंगे, यू विल हैव इट सेपरेटली. Apart from that, here itself you are getting one term. What is that one term? That is brackish water lake. तो it is the largest brackish water lake. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि brackish water lake क्या होता है. Once you understand that, you will also have to understand then if this is the brackish water lake, then what are the other kind of lakes. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी environment portion से cover करोगे. Along with that, the location will be in the mapping one. Then they have talked about this water bird status survey 2022. Now you see that this is the latest survey. So what exactly this is, or you can just quote this somewhere in your answer also. Then they have talked about wetland dependent species. So what exactly is like what do you mean by wetland? So you have the section in your environment, don't worry about it. Once you know about what you understand by wetland, फिर wetland के लिए क्या provisions हैं, क्या conservation steps लिए गए हैं, what are the other issues related to the conservation, some species talking about that, all of that you can prepare. Moving ahead, here you see discussion on, let's say, a mention of, rather I would say, नालबना बर्ड सेंचुरी. तो ये इस तरीके से जो भी नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स यू आर गेटिंग इन द न्यूज़, यू शुड हैव अ सेपरेट नोटिंग ऑफ द सेम. एंड देन दे हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट कहाँ से बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करके आते हैं. दिस इज स्टिल जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. लेकिन जो इसमें वाटर बॉडीज़ लिखी गई है, Caspian Sea, Lake Baikal, Aral Sea, etc. So at least in the map, if you want, you can locate. If you, let's say, you're not knowing and you're wondering कि अच्छा ठीक है ओडिशा में, because this lake is in Odisha, कहाँ से आते हैं बर्ड्स जो है वो माइग्रेट होके, तो एटलीस्ट अगर आप
आपके पास नाम है ऑलरेडी, एंड इफ यू जस्ट हैव योर वेब सर्च और लेट्स से यू चेक इन द एटलस, you will be able to mark those places and it will be very handy, you know, when you will have to revise. Next is the second page. I do not see an important thing here. The third page also nothing. आज actually इस वाले पेपर में कम है news. So fourth also nothing. I usually keep highlighting. Fifth is also not having any as such news. Sixth and seventh are the editorials, so we are skipping. Eighth, okay. So you can see it's very less here. Here this English is the language of courts, says Gujarat High Court. So इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको सीधे सीधे मतलब यू नो यू विल हैव टू फिगर आउट कि ठीक है ये न्यूज़ से लिया हुआ है एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. यू विल नॉट टेक इट लाइटली कि अच्छा ठीक है बस हमने पढ़ लिया, ये तो गुजरात हाई कोर्ट का न्यूज़ है, व्हाट इज़ दैट रेलिवेंस फॉर अस. ठीक है, यू विल नॉट डू दैट. द रीज़न बीइंग, चलिए for the time being, even if I assume that you are not done your static portion, at least I am here to tell you and you know help you with that for the beginners. So I just said that if you do your Polity Lakshmikant book, there is a chapter on the official languages. In that chapter on the official languages, which of course is having the constitutional provisions also, they have talked about the articles from the constitution. You will be getting several sections, usage of the language in the whole functioning, जहाँ पर कोर्ट में क्या लैंग्वेज यूज़ होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, उसका भी एक सेक्शन है. तो जब आप ये न्यूज़ क्लिप पढ़ोगे तो यहाँ की जो न्यूज़ है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, बट द स्टैटिक ऑफ दैट यू विल बी डूइंग इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत. सो एज आई जस्ट सेड, आई रिपीट इट, लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है ऑन द लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वहाँ से आप कोड लैंग्वेजेस वाला इशू प्रिपेयर करोगे, उसके जो भी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जस्ट डू इट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. जो आर्टिकल्स वर्बैटिम है आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो एंड देन द करंट यू आर सीइंग हियर. इन फ्यूचर इफ़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको जैसे जैसे न्यूज़ मिलती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, आप उसमें ऐड ऑन करते चले जाओ, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है. देन यू हैव अनदर थिंग विच इज़ अबाउट दिस पॉश एक्ट. अगेन हाई कोर्ट की एक बात है that the high court guidelines are challenged, but what is this posh act? ऐसा कोई भी देखिए आपको एक्ट मिल रहा है, उसका आपको एक बार न्यूज़ क्लिप तो पढ़ना ही पड़ेगा, एंड देन यू विल फिगर आउट कि विच GS पेपर यू आर गोइंग टू कैटेगराइज इट इनटू. फॉर एग्जांपल इट सेज व्हाट इज दिस पॉश एक्ट. इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट. तो दिस कम्स इन योर विमेन पोर्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच इज़ GS1. ऑफकोर्स GS2 में जो लेजिस्लेशंस होते हैं जहाँ हम बात करते हैं उसमें आ जाएगा, एंड यू नो टॉकिंग अबाउट कि आप गवर्नेंस में कैसे चीज़ों को ला रहे हो, सरकार क्या करती है, वो सब आ जाएगा. बट प्राइमरीली वी टॉक अबाउट ऑफकोर्स विमेन. नाउ व्हेन दे से दैट दिस एक्ट विच इंक्लूड्स अ ब्लैंकेट बार ऑन द पार्टीज एंड एडवोकेट्स फ्रॉम शेयरिंग द रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स विद द मीडिया. दिस इज़ एक्चुअली द इशू. गाइडलाइंस चैलेंज को लेके उन्होंने बस वो इशू करा है. बट जो आपका ये एक्ट है, यहाँ से हमें निकालना क्या है, जो न्यूज़ है वो हमको सिर्फ ये एक्ट के बारे में बात करनी है, so that you can talk about, let's say, some of the important provisions of the act, or you can just mention the act for that matter in any of your answer writing also related to women and significance of, let's say, कि किस तरीके से legislation से जो चीज़ें impact कर रही हैं, कितना इसका effective implementation हो रहा है, if it is facing any challenges, what are the ways we can have forward ताकि हम इस issue को tackle कर सकें, etc etc. You can just try and see that. चलिए ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं. यहाँ पर मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ दैट यू नो ऑल द वर्ड्स दैट यू सी इन द इटैलिक्स इन द न्यूज़, यू विल जस्ट हैव टू नोट इट डाउन एंड हैव इट सेपरेटली, दैट्स इट. इसका मीनिंग आप खोजेंगे. काफ़ी अभी तक 3-4 वर्ड्स हमारे आ चुके हैं इन जस्ट यू नो दिस इज़ द 6th of January. सो इन जस्ट 6 days of newspaper we have got I think 3 to 4 words already. So imagine that you will have a good vocab so that you know you can use it in your answer writing, or let's say understanding or interpreting any article if you are following it on a regular basis. और इसमें भी कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है, as I just said, इसमें कम ही है इस बार के पेपर में. 11th page is on the world or the IR, international relations, as you know. So here it is North Korea fires the ballistic missile in first test in 2 months. कुछ पहले के भी पेपर में हमने ये बात करी है. लोकेशन आई हैव टॉक्ड इनफ ऑन हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट द प्लेसेस एंड यू नो जस्ट यू मार्क देम. फॉर एग्जांपल आपको सारे ही मिल जाएंगे अगर मैं 1 मिनट के लिए उस न्यूज़ को साइड करूँ. दे हैव टॉक्ड अबाउट चाइना, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, म्यांमार, हांगकॉन्ग, यू नो यहाँ पर तालिबान की बात है तो ऑफकोर्स अफगानिस्तान आ जाएगा. देन कजाकिस्तान की बात है. सो सिमिलरली यू गेट सो मेनी प्लेसेस, यू जस्ट कीप मार्किंग. कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़,
तो दे रेजेज अलार्म, US, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना रिमेन्स पैसिव। तो वर्ल्ड का कुछ एक इशू रह रहा है, वैसे भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके जो भी न्यूज़ रहती है वो थोड़ा हाईलाइटेड हो ही जाता है। तो यू विल जस्ट रीड दिस एंड यू विल सी कि अगर इसमें से कुछ लिखने लायक है तो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको वैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन स्टैटिक में, साइंस एंड टेक में एक बार और, जैसे पहले भी न्यूज़ आई थी, उसमें जो आपका सिस्टम रहेगा वहाँ पे जब आपको मिसाइल्स वगैरह को लेके समझना है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, क्रूज़ मिसाइल क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको वो स्टैटिक प्रिपेयर करना है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इन जनरल। दिस इज़ जस्ट अ न्यूज़ बेस्ड ऑन दैट, बट इन जनरल यू विल रिलेट टू इट। चलिए फिर म्यांमार हैज़ इंग्रेडिएंट्स फॉर द सिविल वॉर। तो कोई भी ऐसी कंट्री में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स द प्रीलिम्स में दे कैन गिव यू कुछ मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके के जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं उन पे आ जाते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर नॉट एट ऑल आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, गुड फॉर यू। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपको इशू पता है तो आप उसको कहीं से भी कहीं और यूज़ कर सकते हो, इन द सेंस कि जैसे अगर आप वर्ल्ड में क्योस की बात करते हो, क्योंकि मेंस में जो भी मेन क्वेश्चंस आएंगे दे विल एक्चुअली बी बेस्ड ऑन दैट इफ़ एनी थिंग इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इम्पैक्ट दैट थिंग इज़ हैविंग ऑन इंडिया, ठीक है, तभी वो क्वेश्चन में रहता है। तो हमारा तो ऑफकोर्स प्रिपरेशन हैज़ टू बी फोकस्ड फ्रॉम द पॉइंट कि इंडिया से क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी मेंशन करना पड़े सो दैट यू आर एटलीस्ट अवेयर अबाउट कि अच्छा दुनिया में और क्या चीज़ें चल रही हैं, अगर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं भी हो रहा है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट सिविल वॉर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे अगर आपने मान लीजिए पढ़ लिया म्यांमार को लेके, तो फिर यहाँ पर एक और कंट्री के नाम आ रही है कैम्बोडिया, तो आप मैप में मार्क करोगे, देन दे से दैट दिस इज़ द चेयर ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज रीजनल ब्लॉक। अब इस तरीके से सीधे रीजनल ब्लॉक्स पे भी, क्योंकि दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ योर मेन सिलेबस ऑल्सो एंड प्रीलिम्स में भी एट टाइम्स दे आस्क यू द क्वेश्चन। तो रीजनल ब्लॉक यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट दी आसियान। अब आसियान आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स में इसके सारे जो भी फैक्चुअल डेटा हैं वो प्रिपेयर करना है, और मेंस में अगर कोई इश्यूज़ रिलेटेड टू आसियान्स रहता है न्यूज़ में throughout 1 or 1.5 year, that you have to prepare. Any regional blocking that you are doing, any such grouping organizations you are doing, you should of course know one major point. Apart from what are the members of those blocks or groupings, that India is a member of that particular group or not. For every grouping, you should be very particular about the India's presence, or let's say the presence of India in that particular grouping as a member. वो बस आपको पता होना चाहिए, बाकी तो you will figure out. अच्छा, अब यहाँ जैसे इन्होंने दिया हुआ है हांगकॉन्ग बास फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया एंड 7 अदर कंट्रीज़। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट एज सच नीडेड कि आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड ज़रूरत है, लेकिन अगर जैसे जल्दी में ब्राउज़ करते देखेंगे तो कभी कभी आंखों के सामने कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज़। एटलीस्ट आपको बस लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से, आई एम जस्ट टॉकिंग राइट फ्रॉम द बेसिक, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इफ़ यू आर जस्ट अ बिगिनर एंड अज्यूमिंग, लेट्स से आपको फिलीपींस नहीं पता है कहाँ है, ठीक है, आपको कनाडा नहीं पता, आपको यूरोप के मैप में फ्रांस नहीं पता है कहाँ है, तो पता होना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर। यू जस्ट इमेजिन दैट continues doing this exercise for 5 or 6 months and you will be done with almost all the countries, at least the major ones in the world map. आप उसको खुद फिगर आउट करते चले जाइए। You will not have to need to study the world map one by one. वो मेहनत आपको करनी ही नहीं पड़ेगी, just try and do that. फिर यहाँ पे जैसे कजाकिस्तान है, so just figure it out, and of course the neighboring regions you can see. PMI, which is talking about the Purchasing Managers Index, मैंने इस पर पहले भी बात की हुई है. You just have to keep noting of such indexes, क्या होती है, कौन रिलीज़ करता है, किस चीज़ के बारे में है, that's it. यहाँ पे इन्होंने NCLAT की बात की है, दैट इज़ द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. आपको सबसे पहले जो भी इस तरीके से टर्म्स मिल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन से, उनके बारे में पता होना चाहिए इन योर बेसिक्स. अब जैसे IBC था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इस पर मैंने अभी पुराने ही वीडियो में बात की है, तो आई नॉट रिपीट इट बिकॉज आई वुड अज्यूम दैट द लर्नर्स आर continuously watching, because otherwise you'll not be able to find a linkage. There is a reason that I have been doing January का फर्स्ट से, अदरवाइज जिस दिन से मैंने शुरू किया था मैं उसी दिन से आगे बढ़ जाती. आई हैड नो रीज़न टू गो बैक एंड फिनिश इट फॉर यू फ्रॉम द बैकलॉग, completing those backlogs. So please understand, if I am doing it, I am putting in effort, so there is a reason that you are able to get that whole story. At least अब हम नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर के नहीं जा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं तो फिर वो नेवर एंडिंग हो जाएगा, बट एटलीस्ट फ्रॉम जनवरी वी कैन डू दिस. ठीक है, 1 महीने का बैकलॉग कवर कर पाना फिर भी पॉसिबल है.
So that is what I'm trying to do, even if it takes whatsoever time in the month of February. Earlier I thought that I'll finish it by first week, but it's not happening because it really takes a lot of time to do these things and then upload and doing multiple things, and of course I have other commitments also. But whatsoever time it takes in the month of February, I'll finish the January one as well. So please trust me on that. तो यहाँ से आप ये सारे स्टैटिक्स प्रिपेयर करेंगे. अच्छा, इसको आप बेसिक में लक्ष्मीकांत में when you will do that you will study about tribunal also, और फिर जहाँ पर जुडिशरी रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें you will talk about the tribunal law और tribunal as well. आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, what are the organizations, what do they work for, etc. तो ट्राइब्यूनल का बेसिक मतलब तो सबसे पहले आपको वहीं से पता होना चाहिए. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. ठीक है, बाकी इज़ जस्ट न्यूज़. ठीक, द DRI स्लैब Xiaomi विथ इतना डिमांड नोटिस. तो ये सब हमारे काम का ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन इस तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंट आपको टर्म मिल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ के काम ख़त्म कर लेंगे. देन एंड देयर इटसेल्फ. देन यहाँ पे इन्होंने जो बात की वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ऑल्दो आई डोंट थिंक इसका डायरेक्टली यूजेज रहेगा बिकॉज व्हीकल से रिलेटेड दे आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन चूँकि बेसिक साइंस एंड टेक में आपको कुछ कुछ चीज़ों के मैकेनिज्म को लेके थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा आजकल मेंशन कर देते हैं साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चंस में विच पीपल डोंट जस्ट फिगर आउट कि अरे कहाँ से पूछ दिया. तो अपने वेलफेयर के लिए इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम इफ़ यू जस्ट गूगल सर्च इट एंड लेट्स से हैव योर 2 to 3 लाइनर्स ऑन दैट, कि आपको बस पता हो या फिर जस्ट स्टडी कर लिया, तो दैट आई थिंक विल बी ओके. उससे ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालना है, परेशान नहीं होना है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन जनरल आप बस, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि आप इसको मेंस के हिसाब से अगर ध्यान रखेंगे, इसको आप सेपरेट अपने जो मैंने डायरी की बात की थी इन द अर्लियर वीडियोज़, यू कैन कीप नोटिंग दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर एट अ लेटर स्टेज once you are out of that beginner zone and you have done good enough of your static portion. तो इस तरीके के इशू में मेंस रिलेटेड जो भी पॉइंटर्स आपके सामने आते हैं या प्रीलिम्स रिलेटेड कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो. स्पोर्ट्स रिलेटेड में एज सच नथिंग इज़ देयर. ये तो हर बार मैं बोल रही हूँ, एक्सप्लेनर पेजेस आर नाउ कमिंग रियली ब्यूटिफुली एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम. ठीक है, पैंगोंग ज़ो लेक के बारे में लोकेशन एंड एवरीथिंग एंड व्हाट वाज द इशू, ब्रिज बन रहा है, ये सब हम पहले बात कर ही चुके हैं. तो अब आपको जस्ट उसको यहाँ से और उसको आगे बढ़ाना है, जस्ट टेक इट टू दैट एडवांस लेवल बिकॉज द बेसिक्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड बिकॉज दे हैव गिवन ऑल ऑफ दीज इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, है ना, कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑन द ग्राउंड इन द ईस्टर्न लद्दाख, देन what is the importance of the bridge over the Pangong, so how is India responding to developments on the ground, etc. So it will be easier to get those pointers in a question answer format. Granite scarcity problem in Kerala, because it is India related and then it is a resource related, तो I would say इसको तो आप geography में separate करेंगे ही जब आप करेंगे resource में, don't worry about it. But overall because it is India related, बस आपको थोड़ा सा, because they are asking the question that how are the environmentalists reacting to the granite shortage also. तो इसीलिए थोड़ा सा इसका समरी जो है कि इशू है क्या आपको पता होना चाहिए, एंड यू कैन समराइज इट इन लेट्स से 5 to 7 लाइन्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस इन केस यू वुड नीड टू यूज़ इट लेटर. मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस. ठीक है, इस तरीके की चीज़ें बस आपको पढ़ के, जो भी विमेन रिलेटेड होता है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो कि आपके GS1 में सोसाइटी में तो काम आता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन योर एसे. ठीक है, विच इज़ योर पेपर 1, ताकि आप इन पॉइंट्स को मल्टीपल एंगल देके यूज़ कर सको. एंड ऑफ कोर्स दीज आर गिविंग यू वेरी गुड पॉइंटर्स व्हेन यू हैव टू फॉर्म एनी ओपिनियन एंड लेट्स से प्रेजेंट इन एनी इंटरव्यू ऑल्सो. और अगर आप किसी और एग्जाम के हिसाब से भी करते हो तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह में यू गेट द पॉइंटर्स. तो ये सब चीज़ें ना रीडिंग हैबिट के हिसाब से आपके यूजेज में होने चाहिए, जिसको आप जब जहाँ चाहो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लो. इसमें से कोई प्रीलिम्स रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस, बट हाउ डू यू यूज़ इट टू योर एडवांटेज इज़ द होल क्वेश्चन, दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट. Yeah, I don't think उससे ज़्यादा it's important. Because here they have taken the quiz on the uses of the Greek alphabet, which I don't think is as such. मतलब आपका अपना इंटरेस्ट है, if you have interest of course you can go for that. But इसमें भी कुछ कुछ, जैसे उस दिन कैट फैमिली पर आया था, उसके पहले आई थिंक म्यांमार पर एक बार आया था, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि हमारे सिलेबस ओरिएंटेड हैं, उनको आप ज़रूर प्रिपेयर करोगे. So here we end the discussion on 6th of January. See, you can see that with time earlier we used to take 44-45 minutes, जिस दिन ज़्यादा न्यूज़ रहता है, and because it was just a beginning, so I had to explain whole lot of things that how am I proceeding, क्या चीज़ें हैं, कैसे कर रही हूँ, है ना, सब कुछ में टाइम लगता है.
बट नाउ दैट्स वी आई थिंक यू गाइज शुड ऑल्सो बी यूज टू अपने 5-6 दिन का अगर करा है तो यू शुड बी यूज टू द होल फॉर्मेट एंड यू शुड बी रेगुलर विद दैट. ऑफकोर्स यू हैव टू कैरी आउट योर ओन वर्क एंड होमवर्क, जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, स्टैटिक एंड एवरीथिंग, तो यू विल हैव टू कीप प्रिपेयरिंग, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता. ठीक है, सो यहाँ से आप इसको रिलेट करके देखोगे एंड धीरे धीरे हमारा टाइम कम ही होगा. बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम हर दिन 40 मिनट के हिसाब से सिर्फ ये समझाने में नहीं लगा सकते कि कितना कैसे करना है, क्योंकि उसको करने में भी वक्त लगेगा. सो द लेसर टाइम वी डिवोट फॉर दैट. ऑफकोर्स माई टारगेट वुड बी कि 15 से 20 मिनट्स में आगे के लेक्चर्स जो हैं वो मैं धीरे धीरे, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा ना टू गेट इन टू दैट जोन ऑफ डूइंग थिंग्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. But I'll surely do it in from the coming videos. I'll try and cut down on the timings. Apart from that, किसी दिन न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, आज जैसे कम भी थी इसलिए भी कम टाइम लग रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़ कभी भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ऑफकोर्स टाइम लगेगा एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी. ओके, so I'll see you guys in the next video for 7th of January, and of course simultaneously February is what you're already getting. Please do like, comment, share and subscribe. I would repeat because that's really needed to spread the word. And do check the links in the comment section and the description. Thank you so much guys. Take care till then. Bye bye.